Hello everyone. Today we are going to start with a very important topic of company law, which is Memorandum of Association. What do you mean by Memorandum of Association? Memorandum of Association, according to Lord Macmillan, is a set of instructions, or you can say it is a charter of the company or constitution of the company, and according to which the company works. It defines the scope of the activities of companies, its relation with the outside world. Its purpose is to enable shareholders, creditors, and dealers with the company to know what is the permitted range of its enterprise. Section 2, subsection 56 of the Companies Act 2013 defines memorandum means memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company's law or act. This definition is not complete, although, but it gives us an idea as to nature of this document, nor it indicates its importance itself. Now, in order to understand Memorandum of Association, which we call as MOA, we need to study certain more characteristics and points, which are as follows. One more thing which is very important is, before starting, it is form of Memorandum of Association. Under section 4, subsection 6, Companies Act 2013, the memorandum of a company shall be in respective forms specified in table A, B, C, D, E in schedule 1 as may be applicable to the respective company. तो जिस तरह की कंपनी होगी उसी हिसाब का फॉर्म टेबल ए बी सी डी ई जो कि शेड्यूल 1 में दिया है उसके हिसाब से उसको भरना पड़ेगा. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता क्या, व्हाट डज इट कंटेन? So it's given in section 4 subsection 1. According to this, the very first thing in MOA is the name of the company, and this is written in section 4 subsection 1 subsection A, that is 4 bracket में 1 bracket में A. So it is to be listed, it is to be written in MOA whether the company is limited, and in case it is a limited company then you have to write public limited company or last verse private limited company, जैसा भी हो. दूसरी ज़रूरी बात है नेम ऑफ द स्टेट विच इज़ सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B. MOA must state means tell the STAT राज्य स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कि कहाँ पे वो रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएगी कंपनी, ये भी उसमें लिखा होना चाहिए. तीसरी बात, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी शुड बी रिटन. दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C. MOA of the company must state the objects for which the company is proposed to be incorporated, जिसलिए वो बनाई गई है. चौथी बात, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन D. क्या कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड, ये लायबिलिटी निर्धारित होनी चाहिए, ये MOA में हमें लिखना पड़ेगा. इसी में दो बातें और आती हैं कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इफ़ अ कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड, यानी जितना भी पैसा अभी पे नहीं किया है शेयर होल्डर ने, उसकी लायबिलिटी केवल उतनी ही है जितना उसने पे नहीं किया है. और या फिर अगर उसने कोई पेमेंट नहीं किया है तो जितने शेयर्स उसके पास हैं, द शेयर्स हेल्ड बाय हिम इज़ द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर.
इफ़ द कंपनी इज़ लिमिटेड बाय गारंटी, आपको पहले से पता है कि दो तरह की लिमिटेड कंपनीज होती हैं, आइदर इट इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स और इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट, जितना अमाउंट हर प्रति मेंबर ने कहा है कि मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, उतनी उसकी लायबिलिटी है। पहला, टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, जब वाइंडिंग ऑफ द कंपनी हो रहा है तो एसेट्स ऑफ द कंपनी के हिसाब से, while he is member or within 1 year after he ceases to be a member, या फिर 1 साल के अंदर अंदर जबकि वो मेंबर होना सीज कर चुका है, ख़त्म हो गया उसका मेंबरशिप, फॉर पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। दूसरी जो ज़रूरी बात है कि लिमिटेड बाय गारंटी में रिगार्डिंग टू द कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट्स ऑफ राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ, तो जो वाइंडिंग अप में कितनी कॉस्ट आ रही है, चार्जेस क्या है, खर्चे क्या हो रहे हैं, एडजस्टमेंट जो है राइट्स के, ये सब भी उसी में देखा जाएगा। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू करेगी, ये भी उसमें एमओए में लिखा होता है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज़ टू बी रजिस्टर्ड, कि कितना शेयर कैपिटल के साथ वो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने वाली है, ये उसमें लिखा होना चाहिए। एंड द डिवीजन देयर ऑफ इंटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, और कितने अमाउंट में उस अमाउंट को, मतलब जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है उसको कितने अमाउंट के शेयर्स में आप डिवाइड करेंगे, ये भी उसमें मेंशन होता है। एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विच द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब, तो जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उसमें से कितने शेयर्स वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। वी शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर, तो कम से कम 1 शेयर तो सबको लेना ही है। द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड ऑपोजिट हिज नेम, तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं एमओए के, वो कितने लेना चाहते हैं शेयर्स, ये भी उसके उनके नामों के अगेंस्ट में एमओए में लिखा जाता है। छठवीं बड़ी बात जो है, द नेम ऑफ द पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 एंड फर्दर सबसेक्शन एफ। अगर 1 पर्सन कंपनी है, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, एमओए मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो अगर ओपीसी है तो जो प्रपोज करना चाहिए नाम का कि अगर डेथ होती है सब्सक्राइबर की तो उस केस में कौन नया मेंबर होगा कंपनी का। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट बी आइडेंटिकल विथ और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो जो नया नाम है वो ना तो बहुत आइडेंटिकल हो, ना ही रिजेंबल करता हो विद द एग्जिस्टिंग कंपनी जो कि इसके एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड की गई है, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या किसी अन्य प्रीवियस कंपनी लॉ के अंतर्गत। दूसरी बात, इट शैल नॉट बी सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आपको कोई ऐसा नाम भी नहीं लिखना है कि वो नाम का यूज़ ही अपने आप में कोई क्राइम या ऑफेंस बन जाए या फिर अनडिज़ायरेबल हो इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम विच कंटेन्स एनी वर्ड, एनी एक्सप्रेशन which is likely to give the impression that company is in a way connected with or having patronage of central government or state government। तो ऐसा कोई नाम आप नहीं दे सकते जिससे कि आपको ये शो करें कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आप पैट्रोनेज आपको प्राप्त हो रहा है, और एनी लोकल अथॉरिटी या कॉरपोरेशन या बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। यानी आप कोई भी ऐसा नाम नहीं दे सकते जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप
उससे शो होता हो। Such word or expression as may be prescribed unless the previous approval of central government has been obtained। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आपने प्रायर अप्रूवल ले रखी है तब ज़रूर आप ऐसा कोई नाम दे सकते हैं। फिर इसमें जो ज़रूरी है कि रिजर्वेशन ऑफ द नेम, सेक्शन 4 सबसेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन पर्सन में आस्क एन एप्लीकेशन a person may make an application to the registrar for reservation of the name set out in the application। तो जो पर्सन है, जो सब्सक्राइबर है, वो रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन कर सकता है रिज़र्व करने के लिए उस नाम को कि जो वो रजिस्टर करवाना चाहता है। तो 1 पर्सन कंपनी में जो एप्लीकेशन सब्सक्राइबर कर रहा है इन ऑर्डर टू रजिस्टर द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी या फिर नेम टू विच द कंपनी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ये बताता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फर्निश्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो 60 दिन के लिए जो भी नाम रजिस्टर करने की मांग की जाती है रजिस्ट्रार उसको रिज़र्व कर लेता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। बट आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ द नेम इट इज़ फाउंड दैट नेम वॉज अप्लाइड बाय फर्निशिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है तो फिर इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट बीन, इसमें 2 केसेस हो सकते हैं कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तब रिजर्व्ड नेम जो है वो कैंसिल हो जाएगा और पर्सन जो एप्लीकेशन दिया था जिसने ही इज़ लायबल टू पेनाल्टी विच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 लाख रुपीज़। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो रजिस्ट्रार सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देगा पार्टी को ऑफ बीइंग हर्ड कि उसकी सुनवाई हो और इसके बाद आइदर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, या तो वो बोलेगा कि आप कंपनी से कि आप अपना नाम बदलिए विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के अंदर, आफ्टर पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और इसके अलावा रजिस्ट्रार में ऑल्सो टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है कि मेक अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आप वो ऑर्डर कर सकता है कि आप कंपनी को वाइंड अप करिए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल वेयर एनी प्रोविजन मेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स purports to give any person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise as a member shall be void, which means कि अगर सेक्शन 4 सबसेक्शन 7 ये कहता है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, where any provision made in the memorandum of articles purports to give any person the right to participate in divisible profit, और वो ऐसा कर रहा है कि divisible profits में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑथराइज़ कर रहा है, तो ऐसे में और ऐसे व्यक्ति को ऑथराइज़ कर रहा है जो कि मेंबर नहीं है, तो इस तरह की जो कंपनी है वो इट्स अ वॉइड कंपनी, इट्स वॉइड एब इनिशियो। नाउ लास्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम। क्या इम्पॉर्टेंस होती है इसकी? इट एज्यूम्स अ जिजाइंटिक इम्पॉर्टेंस। एमओए की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है सिंस इट इज़ अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। इट रिवील्स द कंपनीज रेंज ऑफ बिजनेस कैपिटल लायबिलिटी। ये कंपनी की बिजनेस कितना बड़ा है, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, ये सब रिवील करता है, ये सब शो करता है। द पर्सन डिज़ायरस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन द कंपनी कम टू नो the real legal financial managerial and administrative position of the company। जो भी लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एमओए से उनको ये पता चलता है कि उस कंपनी की मैनेजेरियल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन आखिर क्या है। हाउ द कंपनी इज़ टू बी रन, वो कंपनी कैसे रन की जाएगी, एंड हु आर द डायरेक्टर्स देयर ऑफ, और उस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं,
whether qualified and experienced hands or otherwise, क्या वो डायरेक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं. One can know the purpose of the capacity of company besides its sphere of activities. और कंपनी का पर्पस क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ के अलावा ये सब जानकारी भी MOA में अवेलेबल कराई जाती है. इट्स रिक्वायर्ड ओवर देयर. इट इज़ अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द रियल पोजीशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ये प्रतिबिंब होता है, ये शीशे जैसा होता है जिसमें कि कंपनी का एक प्रतिबिंब झलकता रहता है. उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं. वेदर द कंपनी इज़ लिमिटेड, अनलिमिटेड, प्राइवेट, पब्लिक और एनी अदर टाइप. द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी filed with registrar is the subject to inspection not only by the shareholders but even by the outsiders. So dear friends, this was a very short and brief lecture on memorandum of association, its importance and its important characteristics. I hope this lecture will be of help to you in understanding MOA under company law. This is Kirti Vishkarma signing off. Stay safe, stay home, keep studying. Bye bye for now.